द हिंदू 26 अक्टूबर 2022 टू 2022 न्यूज़पेपर की द हिंदू की जिस्ट है। तो सेकंड हाईलाइट में बोला कि ऋषि सुनक बिकम्स ब्रिटेन्स फर्स्ट नॉन वाइट प्राइम मिनिस्टर। नेक्स्ट है क्लीनेस्ट एयर इन दिल्ली अ डे आफ्टर दीपावली इन 8 years बिकॉज द एयर क्वालिटी इंप्रूव विद टाइम ड्यू टू फेवरेबल मीटेरोलॉजिकल कंडीशंस। बेटर एयर क्वालिटी टू द फेस्टिवल अक्रिंग earlier this year when the conditions are warmer and windier, aiding in the dispersion of the pollutants. Next है the Competition Commission of India on Tuesday imposed a penalty of over 900 crore on Google for abusing its dominant position with respect to its Play Store policies. In the second such penalty on the net giant within a week, the Competition Commission of India also issued a cease and desist order. It directed the search giant to allow app developers to use any third party billing services and set out a clear and transparent policy on data collected on its platform. तो यहाँ पे जो है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया क्या है, कौन सी बॉडी है, स्टैट्यूटरी है, क्या है, कौन से एक्ट के अंडर आती है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है प्रीलिम्स के लिए। और सीज एंड डिजिस्ट ऑर्डर क्या है, ठीक है, वो हम नेक्स्ट एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट पेज में। नेक्स्ट है फिफ्थ हाईलाइट संतोष करनानी a 2005 batch IRS officer posted as additional commissioner of income tax in Ahmedabad fled from his office to evade arrest after being booked by Gujarat's anti-corruption bureau on 4 October for allegedly accepting a bribe of rupees 30 lakh। ठीक है, तो ये एथिक्स GS4 के पेपर में आ सकती है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे CBI जो है बोला कि द केस विच सोर्सेज से माइट हैव वाइडर रेमिफिकेशंस इज नाउ बीइंग इन्वेस्टिगेटेड बाय द CBI। तो यहाँ पे CBI क्या है, कौन सी बॉडी है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, क्या है, ठीक है, वो पॉलिटी लक्ष्मीकांत से पढ़ें। नेक्स्ट है चोला एरा ब्रॉन्ज आइडल्स वर स्टोलन। ठीक है, अबाउट 50 years ago फ्रॉम द विश्वनाथ स्वामी टेम्पल एट अलाथूर इन तिरुवरूर डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट, रेप्लिकाज हैड बीन लेफ्ट इन देयर प्लेस। तो चोला का जो टॉपिक है वो मेंस के हिसाब से और प्रीलिम्स के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे हमें NCERTs, रेगुलर NCERTs और बुक्स से पढ़ लेना चाहिए। इस बार मेंस में चोला से रिलेटेड एक क्वेश्चन भी आया था। नेक्स्ट है जो नेक्स्ट ये जो है आर्टिकल, ये रिलेटेड है कंपटीशन ऑफ कमीशन ऑफ इंडिया ने जो गूगल के ऊपर फाइन लगाया उससे रिलेटेड है। ठीक है, तो बोला कि सिग्निफिकेंटली इट विल नॉट बी अ बिजनेस एज यूजुअल फॉर गूगल एज द रेगुलेटर हैज़ इशूड अ सीज एंड डिजिस्ट ऑर्डर अगेंस्ट इट, according to which it will have to drastically change the terms of the deals it enters into with original equipment manufacturers. For instance, as per the Competition Commission order, Google should not henceforth force original equipment manufacturers to choose from its bouquet of apps to pre-install on the device, nor should it, the order says, require device makers to pre-install its apps such as Google Search, Chrome, YouTube, Maps among others as a precondition for licensing of its Play Store. It also has been directed against restricting users from uninstalling its pre-installed apps. One of the requirements, in fact, targets Google's primary revenue generator. It says Google shall allow the users during the initial device setup to choose their default search engine for all search entry points. These, among a slew of such requirements, could well mean that Google will have to tweak its business model in India. Google has termed the order a major setback for Indian businesses and consumers, saying it opens up security risk while also possibly raising the cost of mobile devices. While the option of legal review is open, it is to the regulators' credit that the Google's anti-competitive practices have been called out. What the mobile users of a potential digital powerhouse such as India need is an environment of real choice. तो इसमें बेसिकली इस वाले में ये बोला गया है कि जो हम कोई भी डिवाइस, मोबाइल डिवाइस खरीदते हैं तो उसमें गूगल क्रोम हो गया, गूगल की यूट्यूब हो गई, वो पहले से प्री इंस्टॉल्ड होती हैं। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है कि हम उनको डिलीट भी नहीं कर सकते हैं। अगर आप अपने डिवाइस स्मार्टफोन खोल लेंगे तो उसमें आप जब यूट्यूब की ऐप खोल लेंगे उसको डिलीट करना चाहेंगे तो वो डिलीट नहीं हो पाएगी। तो बेसिकली कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने बोला हुआ है कि ये जो है एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं है और इसको जो है गूगल को नहीं करना चाहिए। जबकि गूगल बोलता है कि अगर हम ये ऐसा नहीं करेंगे तो जो डिवाइसेस का प्राइस है वो
इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि फिर जो सर्च इंजन्स हैं गूगल क्रोम के अलावा, ठीक है, वो लोगों को इंस्टॉल करने पड़ेंगे, हो सकता है लोगों को इसके लिए पैसे भी देने पड़े। फिर नेक्स्ट सेकंड हाईलाइट में लिखा कि द कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया इम्पोज अ पेनल्टी ऑफ अबाउट 1337 crore said to be provisional amount on Google, while coming down heavily on it for having such restrictive clauses in its agreement with original equipment manufacturers who use its Android platform that it can keep competition at bay. And because of such agreements, the order said, Google ensured that users continue to use its search services on mobile devices, with which facilitated uninterrupted growth of advertisement revenue for Google. It therefore concluded that the whole idea of the Google imposing such restrictions on its device partners was to protect and strengthen its dominant position in general search services and thus its revenues via search advertisements. This decision, both the penalty and the regulator's decision to Google to modify its conduct, will be welcomed by anyone who realizes the power of the big IT platforms to shut out competition and therefore choice of the users and choice for the users. ठीक है, तो नेक्स्ट है कि द बिगिनिंग ऑफ द रिन्यूएबल एनर्जी रेवोल्यूशन रूटेड इन एग्रीकल्चर are taking shape in India with the first bioenergy plant of a private company in Sangrur district of Punjab having commenced commercial operations on October 18th. It will produce CBG, compressed biogas from paddy straw, thus converting agricultural waste into wealth. ठीक है, तो संगरूर में जो प्लांट है उसमें जो पैडी की स्ट्रॉ होती है आफ्टर हार्वेस्टिंग सीजन, उससे कंप्रेस्ड बायोगैस, कंप्रेस्ड बायोलॉजिकल गैस बनाई जाएगी। बेसिकली ये बोला गया है कि जो एग्रीकल्चर है वो भी ग्रीन एनर्जी में फोर फ्रंट में है। तो ये एग्जांपल है जो हम मेंस में पुट कर सकते हैं। नेक्स्ट टेक्नोलॉजी सजेस्टेड दैट द राइस स्ट्रॉ कैन बी कॉस्ट इफेक्टिव फॉर प्रोड्यूसिंग compressed biogas and pellets. Pellets can be used in thermal power plants as a substitute of coal and compressed biogas as a transport fuel. ठीक है, तो compressed biogas को हम transport fuel भी यूज़ कर सकते हैं। With 30% of the rice straw produced in Punjab, a 5% compressed biogas production target set by the Government of India scheme सतत यानी कि sustainable alternative towards affordable transportation सतत can be met. It could also increase local entrepreneurship, increase farmers' incomes and reduce open burning of rice straw. ठीक है, तो सतत क्या है इसके बारे में आप जान लीजिए, क्योंकि ये प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। सीबीजी कंप्रेस्ड बायोगैस और किन किन चीज़ों से प्रोड्यूस की जाती है इसके बारे में गूगल में सर्च करिए, क्योंकि ये प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से फिर से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट अंडरलाइन हैशटैग आता है कि देयर आर several अदर बेनिफिट्स। ठीक है, तो सीबीजी इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। द स्लरी और फर्मेंटेड ऑर्गेनिक मैन्योर फ्रॉम द प्लांट यानी कि सीबीजी प्लांट विल बी यूजफुल एज कंपोज टू रिप्लेनिश सॉइल्स हैवली डिप्लीटेड ऑफ ऑर्गेनिक मैटर and reduce dependence on chemical fertilizers. The plant will also provide employment opportunities to rural youth in the large value chain from paddy harvest, collection, baling, transport and handling of biomass and in the CBG plant. This will boost the economy of Punjab. It is pertinent to mention that straw from many other crops contains higher energy than paddy straw. ठीक है, तो ये भी हमें ध्यान में रखना है कि जो straw from many other crops contains higher energy, मतलब कि paddy straw जो है वो सिर्फ पैडी स्ट्रॉ को क्यों टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि वो प्रोड्यूस होता है मैक्सिमम जो है, लेकिन ऐसे बहुत से भी प्लांट्स हैं जो कि पैडी से ज़्यादा कैलोरिक वैल्यू देते हैं, हमें ज़्यादा एनर्जी देते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है, ये करंट अफेयर में पेपर में ही है लेकिन पॉलिटी में भी दिया गया है, लक्ष्मीकांत में भी, कि HR खन्ना, ठीक है, रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जस्टिस HR खन्ना whose lone dissent which upheld personal liberty and rule of law in the emergency era ADM Jabalpur case is reported to have cost him his chief justiceship in 1977. ठीक है, तो अब एमरजेंसी क्या है, ठीक है, आर्टिकल 352, 356, 360 एटलीस्ट ये पढ़ लीजिए पॉलिटी लक्ष्मीकांत से रिलेटेड, और उसमें HR खन्ना जी के बारे में जैसे कि जो दिया हुआ है इसमें, ठीक है, तो वो वहाँ पे भी मेंशन होगा पॉलिटी की बुक में, उसे भी पढ़ लीजिए।
अब नेक्स्ट लिखा है जस्टिस D.Y. चंद्रचूड़ विल बी द 50th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड जस्टिस नगरथना विल बी इंडियाज फर्स्ट वुमेन CJI इन 2027। ठीक है, तो 2027 में हमें इंडिया की फर्स्ट वुमेन CJI मिलेगी। नेक्स्ट है एन एस्टिमेटेड ओवर 3,30,000 people died in India due to exposure to particulate matter from fossil fuels combustion in 2020, says the 2022 report of the Lancet Countdown on the Health and Climate Change, Health at the Mercy of Fossil Fuels। ठीक है, तो लैंसेट की जो है रिपोर्ट आई है काउंटडाउन ऑन द हेल्थ एंड क्लाइमेट चेंज, हेल्थ एट द मर्सी ऑफ द फॉसिल फ्यूल्स। इसके अकॉर्डिंग इन्होंने एस्टिमेट करा है लैंसेट ने कि लगभग 3,30,000 लोग जो हैं पॉल्यूशन की वजह से इंडिया में मरे हैं 2020 में। अब नेक्स्ट न्यूज़ है फैक्चुअल है कि साइक्लोन सितरंग किल्स एटलीस्ट 24 पीपल इन बांग्लादेश। नेक्स्ट है इंडियाज एक्सपोर्ट्स टू चाइना ग्रोइंग फास्टर दैन इनबाउंड शिपमेंट्स, PLI schemes for different sectors will help reduce dependence on imports over time. Technical regulations framed for products such as toys, electronics, chemicals and fertilizers will check substandard imports से गवर्नमेंट ऑफिशियल। ठीक है, तो बेसिकली ये जो इकोनॉमिक सेक्शन में आई है कि इंडिया का जो एक्सपोर्ट है वो चाइना को इम्प्रूव हो रहा है, किसकी वजह से? PLI स्कीम की वजह से, प्रोडक्ट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। ठीक है, तो PLI स्कीम क्या है इसके बारे में पढ़ लें, क्योंकि ये जो है प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, PLI स्कीम क्या है, उसके क्या क्या कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, तो क्योंकि और ये जो है, ये जो न्यूज़ है ये एग्जांपल है मेंस में पुट करने के लिए। नेक्स्ट ईयर जब मेंस होगा कि PLI स्कीम की वजह से जो है देखो इंडिया का एक्सपोर्ट जो है वो चाइना में भी इंक्रीज़ हो रहा है एज़ कम्पेयर टू अर्लियर। ठीक है, और उसके बाद ये है कि चाइना के साथ हमारा एक्सपोर्ट इंक्रीज़ हुआ है लेकिन प्रॉफिट में नहीं है। अभी भी चाइना जो है, जो ट्रेड बैलेंस है वो चाइना की तरफ है। चाइना जो है हमें ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है, लेकिन हमारा जो एक्सपोर्ट है वो इंक्रीज़ हुआ है चाइना की तरफ, इसलिए जो ट्रेड बैलेंस है वो, जो डिफरेंस है वो कम हुआ है। ठीक है, चलो फिर जो टारगेट्स हैं, जो मैंने पढ़ने के लिए बोला है प्रीलिम्स के लिए, उसे पढ़िए, बुक से पढ़िए। और ये तो जो बताया है ये हिंदू का जिस्ट है, इससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, डेली बेसिस पे इसे करिए। और अगर इससे नोट्स बनाने हैं तो बनाइए अपने हिसाब से। थैंक यू।